سرکاری اسپتالوں میں علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرنے کے دعوے رہ گئے۔ فیصل آباد سمیت 13 اضلاع میں دل کے مریضوں کو علاج فراہم کرنے والا انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی سٹی اینجیو مشین سے محروم ہو گیا۔ اسپتال انتظامیہ کی محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو متعدد بار سفارش بھی کام نہ آ سکی۔ ٹوبہ کے ڈسٹرکٹ اسپتال میں مریضوں کی مشکلات بڑھ گئی۔ ڈیجیٹل ایکس رے فلم نایاب، لوگ پرائیویٹ مہنگے ایکس رے کروانے پر مجبور۔ 5 روز سے چکر لگوائے جا رہے ہیں۔ ایمرجنسی میں بھاری فیسیں دے کر ایکس رے کروانا پڑتا ہے، مریضوں کی دہائی۔ ہوشیار خبردار، بچوں کے کھلونے اور اسٹرا میں گندا پلاسٹک استعمال ہونے کا انکشاف۔ ڈرپ سرنجز اور اسپتالوں کا دیگر آلودہ سامان کباڑ خانوں سے خریدا جاتا ہے۔ محکمہ ماحولیات نے بیماریوں کی بڑی وجہ سے پردہ اٹھا دیا۔ اسپتالوں کو طبی فضلہ مناسب طریقے سے تلف نہ کرنے پر کارروائی کا عندیہ۔ لائسنس زائد المیعاد فیصل آباد الائڈ اسپتال میں گردوں کی پیوند کاری تاحال بند۔ ہوٹا کی جانب سے لگائے گئے اعتراضات کو دور نہ کیا جا سکا۔ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈویژن ڈاکٹر کامران رشید کا نوٹس۔ قوانین پر عمل درآمد، میڈیکل ویسٹ کو بہتر طریقے سے ٹھکانے لگانے کی ہدایت کر دی۔ ایم ایس نے مجھے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ ان کا جو انسینیٹر والا معاملہ ہے وہ حل ہو جائے گا 2-3 دن میں، وہ اس کے مطابق ہمیں ڈاکومنٹ پرووائڈ کریں گے۔ تو جو ہی وہ پرووائڈ کر دیتے ہیں، ہم ری رجسٹریشن کے لیے کمشنر صاحب کو کہیں گے تو پھر وہ آگے اپلائی کر دیں گے، تو ان کا معاملہ تب حل ہو جائے گا۔ کورونا کے وار تیز، مزید 3 اموات، 151 نئے کیسز رپورٹ۔ فیصل آباد میں کیسز کا تناسب 8% رہا، 2 مریض جان کی بازی آ گئے۔ 72 افراد میں وائرس کی تصدیق، جھنگ میں 33، ٹوبہ میں 29 اور چنیوٹ میں 17 افراد کی رپورٹ مثبت آ گئی۔ ڈسٹرکٹ اسپتال چنیوٹ میں کرونا ویکسین نایاب، سائنو فارم کی دوسری ڈوز لگوانے والے شہری پریشان۔ پیر محل کی عوام کی بھی کرونا ویکسینیشن میں دلچسپی۔ تحصیل اسپتال میں ویکسین لگوانے والوں کا رش بڑھ گیا۔ سینٹر میں بیٹھنے کی جگہ کم پڑنے سے مشکلات کا سامنا۔ ڈپٹی کمشنر جھنگ فیاض محل سے پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ پیٹرول پمپ پر ویکسین نہ لگوانے والے افراد کو پیٹرول نہ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایسوسی ایشن نے 50% شہریوں کو ویکسین لگوانے کے بعد پابندی لگانے کی تجویز دے دی۔ جھنگ میں کرونا ویکسین کا اندراج کروانے والا آن لائن سسٹم جواب دے گیا۔ نرسنگ اسکول سینٹر میں بجلی بند، مرد و خواتین کا گرمی اور ہب سے برا حال۔ 10 ویکسینیشن سینٹرز میں ویکسین بھی ختم ہو گئی۔ سوشل سیکیورٹی اسپتال اور ڈسپنسریوں کو CCTV کیمرے لگانے کے احکامات۔ فیصل آباد سمیت صوبے بھر میں 30 سپتمبر سے پہلے عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ گریڈ 1 سے 16 تک کے تمام ملازمین کے لیے یونیفارم پہننا بھی لازم قرار۔ فیصل آباد شہر میں بادلوں کا راج، موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں مسئلہ ابر آلود رہے گا، بارش کا امکان موجود ہے۔ فیصل آباد ماسٹر پلان کے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہونے کا معاملہ۔ جیوگرافک انفارمیشن سسٹم کے تحت گرین اور براؤن ایریا کی تقسیم کس طرح کی گئی؟ GIS کے معاملے پر اینٹی کرپشن میں بھی درخواست دائر کر دی گئی۔ FDA سے ماسٹر پلان کا تمام تر ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ DG اینٹی کرپشن گوہر نفیس کی اینٹی کرپشن آفس فیصل آباد آمد۔ DG اینٹی کرپشن کی ریجن بھر کے افسران سے ملاقات۔ سائلین کی درخواستوں پر انکوائری جلد مکمل کرنے کے احکامات۔ فیصل آباد میں پارکنگ مسائل سنگین، تاجروں کی مشکلات بڑھنے لگی۔ پارکنگ کی وجہ سے ٹریفک کا نظام متاثر ہے، 20 سالوں سے سنوائی نہیں ہو رہی۔ سیکرٹری جنرل سٹی کلوتھ بورڈ عباس حیدر شیخ نے کہا کہ پارکنگ پلازوں کی تعمیر ناگزیر قرار دے دی۔
डॉलर तगड़ा, रुपया कमजोर, महंगाई का नया तूफान, एक्सपोर्ट के लिए बड़ा दचका। 2 माह में फ्रेट चार्जेस 700 से 1000% तक बढ़ गए। 20 फीट कंटेनर का चीन से पाकिस्तान का किराया $5000 हो गया। सनअतकारों के मुताबिक सितंबर 2020 से कबल रेट $700 था। FBI की मुबैना गफलत, माली साल 2020 के इनकम टैक्स रिफंड केसेस की बड़ी तादाद ताहाल ज़ेर इल्तवा। टैक्स दहिंदगान को परेशानी का सामना। FBI हेडक्वार्टर ने 15 सितंबर तक 5 करोड़ रुपए तक रिफंड प्रोसेसिंग मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। सिटी 41 ने अगस्त की एक्सपोर्ट एसोसिएशन सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन रिपोर्ट हासिल कर ली। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से 6.5 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर्स रिपोर्ट, PTEA के 4 करोड़ और एपोबूमा 1.5 करोड़, DTAP के 1 करोड़ के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स। फैसलाबाद से जारी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की तादाद 1025 रही। ब्रिटिश हाई कमीशन के नुमाइंदा का दौरा फैसलाबाद। ऐवान सनअत व तिजारत के साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर हाजी मोहम्मद अदरीस समेत बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की। दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात मजबूत करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और प्रोडक्शन इस्लामाबाद ब्रिगेडियर कामरान आदिल का फैसलाबाद का दौरा। FCCI के सीनियर नायब सदर चौधरी तलत महमूद समेत दीगर से मुलाकात की। पाकिस्तानी मसनूआत की फरोख्त के लिए कौमी इदारों के ताउन पर बातचीत की गई। फैसलाबाद में रियाज शाही चौक के सहूलत बाजार में बेशतर अशिया नायाब। आटा, दालें, चीनी, सब्जियां, फल समेत सब कुछ मौजूद ही नहीं। खाली स्टॉल मायूसी बांटने लगे। शहरियों ने सस्ते बाजारों को सिर्फ नाम का सस्ता करार दे दिया। बढ़ती महंगाई ने कमर तोड़ दी। मजदूर पॉलिसी से नाना कारोबार तबाह। महंगाई ने 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी मुश्किल बना दिया। काम नहीं मिलता, घर वालों का पेट कैसे भरे, मजदूर की दुहाई। लालिया सर्कल पुलिस में तकर्रुर और तबादले। SHO एजाज इमरान, अली अकबर, फरूक तहसीन और असदाबाद का तबादला। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन असदाबाद जहूर हुसैन का भी तबादला। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिलाल जफर ने अहकाम जारी कर दिए। अहमदपुर सयाम में चोरी की बड़ी वारदात। 120 तोले सोना, 110 तोले चांदी और दीगर सामान चोरी हो गया। वाकया धाड़ा कंबर शाह में पेश आया। चोर 5 कमरों की छतें फाड़कर अंदर आए। चनियोट की जिला इंतजामिया शहरियों की जानों से खेलने लगी। शाहराह और मेन गफूराबाद रोड पर खुले मेन होल्स मौत को दावत देने लगे। कहीं गटरों के ढक्कन टूटे फूटे, कहीं है ही नहीं। शहरियों के हुकाम को नोटिस देने की दुहाई। फैसलाबाद के 8 बाजारों में बिजली के लटकते तार खौफ की अलामत। मंसूराबाद की मरकजी मार्केट में भी तारों को तरतीब न दिया जा सका। जिला कचहरी झंग में भी टूटे तार और स्पार्किंग की शिकायत। साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी नाजिया राहील का टिब्बा सुंगलवाला कमालिया का दौरा। तजावुजात की आड़ में गरीब आवाम के 200 घर गिराने की मजम्मत। बोली के महकमा आसार कदीमा से किसी किस्म का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। झंग में सफाई मसाइल। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को नाकिस कारकर्दगी पर हटा दिया गया। लोकल गवर्नमेंट की CEO आसिफ कुरैशी को हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत की बल्दियाती इदारों के लिए सैनिटरी वर्कर्स भर्ती करने की मंजूरी। मेट्रोपॉलिटन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल टाउन कमेटियां सैनिटरी वर्कर्स रख सकेंगी। बल्दियाती इदारे मुलाजमीन सिर्फ 30 रोज के लिए रोजाना उजरत की बुनियाद पर भर्ती करेंगे। हायर एजुकेशन कमीशन ने 2 साला ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स खत्म कर दिए। 2021 के बाद रजिस्टर्ड किसी भी तालिब इल्म की डिग्री HEC से मंजूर नहीं होगी। पहले से दाखिल तलबा को डिग्रियां मुकम्मल करने के लिए 4 साल की मोहलत दे दी।
जहांगीर शन्योर समेत दीगर अजला में पैदाइश अमवात निकाह नामों के दाखिल से इंदराज पर फीसों में बड़ी कमी। पैदाइश अमवात निकाह इंदराजात फीस 300 से 200 हो गई। लेट पैदाइश इंदराज पर मौजूदा फीस का 10%, अमवात का सिर्फ 20% तक जमा करवाना होगा। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन फैसलाबाद में बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स की कमी। नॉन क्वालिफाइड बिल्डिंग इंस्पेक्टर से काम चलाया जाने लगा। बुनियादी मालूमात न होने से कन्वर्जन फीस की मद में रेवेन्यू मुतासिर। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों की तादाद भी बढ़ने लगी। पीएचए फैसलाबाद गवर्निंग बॉडी का 13वां इजलास 92 करोड़ रुपए का सालाना बजट मंजूरी के लिए पेश किया गया। इश्तिहारात के रेट्स पर भी नजरसानी होगी। मुलाजमीन का स्पेशल अलाउंस भी ज़ेरे गौर है। मुद्दई और गवाहान अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। डकैती मुकदमात की पैरवी करने से गुरेजा। डकैती के 90% से ज़ायद मुल्जिमान हर साल बरी होने का इंकशाफ हुआ। 2020-21 में डकैती के 16 मुल्जिमान को सजाएं हुई। 376 बरी हुए। रिपोर्ट जारी। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक बार बराए तावान और कत्ल के 2 मुल्जिम गिरफ्तार। दोनों दुबई से आए, एक फैसलाबाद और दूसरा जड़ावाला का रिहायशी है। स्मार्ट वेरिफिकेशन अलर्ट सिस्टम में नाम आने पर गिरफ्तार किया गया। सेशन अदालत फैसलाबाद ने मनशियात केस में मुल्जिम को 6 साल कैद की सजा सुना दी। 30,000 रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दे दिया। ख़वातीन पर तशद्दुद और दीगर जराइम की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम पर जोर। वज़ीर कानून राजा बशारत ने FIR के फौरी इंदराज की हिदायत कर दी। इजलास में कमिश्नर और RPO की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। पंजाब में प्राइस मजिस्ट्रेट की तैनाती की मंजूरी भी दे दी गई। कोरोना SOPs के पेश नज़र स्कूल्स की एक हफ्ते के लिए बंदिश पर अमल दरामद। टोबा में असिस्टेंट कमिश्नर ज़ोहा शाकिर ने स्कूल्स का जायजा लिया। वालिदैन पर कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करवाने के लिए जोर दिया। फैसलाबाद नेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशन की तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़िलाई डायरेक्टर डॉक्टर सईद आफ्ताब का तालीमी इदारे फौरी खोलने का मुतालबा। हुकूमत ने 11 सितंबर के बाद तालीमी इदारों को मजीद बंद रखने का फैसला किया तो सड़कों पर निकलेंगे। अब तक लाखों बच्चे तालीम से महरूम हो चुके हैं। इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने 50 से ज़ायद डिग्री प्रोग्राम में दाखिलों का आगाज कर दिया। BS डिग्री प्रोग्राम के तहत दाखिले दिए जाएंगे। आखिरी तारीख 16 अक्टूबर मुकर्रर। जंग सेंटर में 14,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात ज़ेरे तालीम है। आलमी योम ख्वानगी लिटरेसी डिपार्टमेंट शन्योर के ज़ेरे तमाम सेमिनार और वॉक डिप्टी कमिश्नर सैयद मसूद दुमान, CO एजुकेशन जफर अब्बास रिहान और DO लिटरेसी मैडम रहीना गुल ने खुसूसी शिरकत की। जुडिशल कॉम्प्लेक्स शन्योर में योम दिफा अकीदा खत्म नबूवत प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। सदर बार मलिक फतेह शेर खोखर ने हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी और अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। इंतजामिया के साथ मिलकर शहर के मसाइल हल करने की अज़्म का इज़हार किया गया। सैयदा खातून जन्नत स्पेशल एजुकेशन सेंटर में वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे की तकरीब का एहतमाम किया गया। CO सैयद मोहम्मद शर्जील, डॉक्टर रजीना अख्तर, साबिया खान समेत दीगर की शिरकत। शहरियों को स्पेशल बच्चों के लिए फिजिकल थेरेपी की अहमियत के बारे में आगाही दी गई। लाइफ स्टॉक फैसलाबाद की जानिब से जानवरों की वैक्सीनेशन शुरू। बड़े और छोटे जानवरों में मुदाफियत पैदा करने के लिए वैक्सीन लगाई जाएगी। एम्प्लॉयज फेडरेशन और NPO की फैसलाबाद में आगाही मीटिंग। चौधरी तलत महमूद, डायरेक्टर बिजनेस स्कूल, डॉक्टर सज्जाद समेत दीगर ने शिरकत की। ऐवान सनत और तिजारत में जिनिंग और स्पिनिंग सेक्टर से मुतालिक नशिस्त का एहतमाम किया गया। मजदूरों के बुनियादी असूल और हुकूक पर तबादला ख्याल किया गया।
فیصل آباد چیمبر صدارتی امیدوار عاطف منیر کی اہلیت چیلنج بن گئی. صدارتی امیدوار الیکشن کمیشن کا حصہ نہیں بن سکتا. اپوزیشن کا اعتراض ڈی جی ٹی او نے فیصلہ عاطف منیر کے حق میں سنا دیا. والنٹیئر فورس پاکستان کے زیر اہتمام فیصل آباد میں کریٹو لیڈرشپ کانفرنس کا اہتمام. ایم پی اے سبیہ طاہر اور سابق ترجمان گلگت بلتستان فیض اللہ فراق اور ڈپٹی اٹارنی جنرل فاروق سمیت دیگر نے شرکت کی. اور ایتھلیٹک جیولن تھرو کی نیشنل کھلاڑی سارہ خالد کی سالگرہ. دوست احباب کھلاڑیوں کی مبارکباد اور نیک تمناؤں کا اظہار.